Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm the educator and today we are going to start chapter number 7 aggregate demand and related concepts. Okay, इसमें आपके जो है most probably चैप्टर्स 2-3 हैं. इसके बाद हमारी मैक्रो फिनिश हो जाएगी, खत्म कर देंगे, हम कंप्लीट कर देंगे. एग्रीगेट डिमांड है, देन इनकम डिटर्मिनेशन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. ओके, so let's start here very quickly. First of all, meaning of aggregate demand here. So aggregate demand means what? It is the combined demand or total demand. Aggregate का मतलब क्या होता है? Total. Okay, total demand or combined demand of all the various sectors of the economy. That is the four sectors. तो four sectors मैंने आपको बताए थे, शुरू में हमने पढ़ा था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में. दैट इज देयर आर फोर सेक्टर्स: हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, बट हमें फोकस क्या करना है? अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, only household and firms we will consider. Okay, so meaning and components of aggregate demand. Aggregate demand, that is AD, इसको हम बोलेंगे, refers to the total value of final goods and services that all the sectors, यानी कि final goods लेना है, intermediate goods नहीं लेना है, only final goods are going to be taken into consideration that are ready to be used, okay, are consumed, that all the sectors of an economy plan to buy at a given level of income during a period of one accounting year. Okay, now here only two sectors you will take into consideration. Okay, and AD is the aggregate expenditure that different sectors of the economy are willing to incur and they are also ready to spend. Okay, ready to spend है, they are willing to incur during a given period. It means AD and aggregate expenditure means the same thing. It means they are willing to spend. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वलेंट है, राइट. सो इन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे मैं लिख दूं आपको, बल्कि बता सकते हैं हम कि देयर आर फोर सेक्टर्स. ओके, तो ये पहले आपका था, सेक्टर्स कितने हैं? सेक्टर्स आपके हैं हाउस होल्ड, देन फर्म्स, देन गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जिस पर हमें फोकस करना है हाउस होल्ड पे एंड फर्म्स पे. यही दो आपके सेक्टर्स मेन चलेंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, जो ये डिमांड करते हैं चारों सेक्टर्स, तो यही एक्सपेंडिचर भी करेंगे. ओके, फाइन. तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा. गॉट इट? ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है. और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है. ओके, so it means AD and aggregate expenditure means the same thing. Got it here? Please, you can take the screenshot of this also. क्योंकि ये पूरे साल का होता है, इसलिए हमें ये फ्लो कॉन्सेप्ट है. ओके, then it is important to note that aggregate expenditure refers to the planned expenditure. Planning के साथ कर रहे हैं, not the actual expenditure. So AD is the total expenditure at all the household, firms, government and the rest of the world. Okay, let me just rub it and then I'm going to scroll the screen. तो इतना आपको समझ में आ गया. देयर आर फोर सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, बट फोकस हमें करना है खाली दो पे. और एग्रीगेट मींस दैट इज द एक्सपेंडिचर. ओके, टोटल एक्सपेंडिचर, फाइन, that both these sectors are trying to incur. Okay, so firms, government and the rest of the world are planning to incur during a given period of time. So AD is a flow concept. देखिए वही चीज आ गई, AD is a flow concept as it's generally measured for the period of an accounting year. Do not confuse aggregate demand with the market demand. Aggregate demand का मतलब क्या? पूरे आपके टोटल कंट्री की डिमांड होगी और द एंटायर इकोनॉमी. Whereas market demand is a total demand for one commodity in the market. Okay, ना कंपोनेंट्स क्या होंगे, मैं आपको पहले बता दिया. प्राइवेट का मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन, इसको डिनोट करते हैं हम सी से, कैपिटल सी. It refers to the total expenditure incurred by household on purchase of goods and services during an accounting year. Generally, consumption expenditure is directly influenced by the level of disposable income. जितनी आपकी disposable income होगी उतना ही आप इसको consumption बढ़ाएंगे. Okay, right? Now the next is disposable income. Refers to the income from all sources which is available to household for spending on consumption and saving. Okay, जितना आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, so as a disposable income से ही आपका ये जो है what you can say कंजम्पशन जो है आपका, ये एक्सपेंडिचर उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं आप. ठीक है, आप मतलब यहाँ पे कंज्यूमर है, राइट. नाउ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड बाय आई. ओके, इट रिफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल. इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स. ओके, ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टमेंट इसी पे करेंगे, वो फर्म्स करेंगे. इट इंक्लूड्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एक्सेट्रा एंड चेंज इन इन्वेंट्री.
देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज गवर्नमेंट किस चीज पे स्पेंड करती है, इट रिफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनपर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। यही मेन टारगेट होता है। It means government incurs consumption expenditure as well as investment expenditure. Now, how the consumption expenditure कौन से होते हैं जिस पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है टू मीट द पब्लिक नीड्स, लाइक लॉ एंड ऑर्डर पे होता है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, पार्क फैसिलिटीज एंड ऑल। ओके, तो ये सब चीजें आपकी गवर्नमेंट स्पेंड करती है फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फॉर इन्वेस्टमेंट इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, रोड्स, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। Then net export means what? That is the difference between exports and import is the net exports. Okay, ये आपको पहले ही बता चुके हैं. Exports indicate demand for goods produced within the domestic territory of a country by the rest of the world. Okay, and imports refer to demands of the residents of a country for the goods that have been produced abroad. Imports यानी कि जो हम सामान बाहर से खरीदते हैं, that is the imports. Exports जो हम supply करते हैं rest of the world को, that is exports. In short, the difference between exports and imports is termed as net exports. I have already told you. Now, components or determinants of constituents of AD means aggregate demand. मैंने आपको पहले बताया था, that is private consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure and net exports. Okay, तो इन्हीं का brief मैंने आपको भी बता दिया meanings. Okay, so in short we can say AD is equals to C plus I plus G and X minus M, that is the net exports. Okay, now if you can remember here, तो हमने भी जब एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम में किया था तो उसमें भी क्या था, दैट इज प्राइवेट में आपका आ गया था जीडीसीएफ, इन्वेस्टमेंट में आ गया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, नहीं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड इन्वेस्टमेंट में आपका आ गया जीडीसीएफ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आपका आ गया ये दैट इज गवर्नमेंट का ही था। ओके, पीएनजी हमने लिखा था ना उसमें शॉर्ट फॉर्म, एंड नेट एक्सपोर्ट्स एन से था नेट एक्सपोर्ट, तो सेम वही है, बट वी विल ओनली स्टडी और फोकस ऑन ओनली दीज टू, दैट इज सी प्लस आई। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी मतलब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट वी विल फोकस इन द नेक्स्ट, जो भी हम अभी पढ़ेंगे उसमें हमें मेन फोकस यही करना है। ओके, so aggregate demand in a two sector model, since the determination of income and employment is to be studied in the context of these two sectors model, that is household and firms, household and firms. Okay, third and fourth component of aggregate demand are not discussed in detail. So even though AD has four components, we will assume that there is closed economy. तो जितने भी हम concept अभी पढ़ेंगे आगे इसका, so we will just consider only AD is equals to C plus I, that is the आपका two sector model, that is households and firms. Okay, AD is a function of only consumption expenditure and investment. So expenditure आपका क्या होगा, that means short में अगर हम कहेंगे तो AD is equals to C plus I. Now diagrammatically AD depends upon the level of income in the economy. जितनी income हो रही है उतना ही आपका aggregate demand होगा. Okay, so generally there exists a positive relationship between income and level of aggregate expenditure. Now here you have to understand that is there is a positive relationship between the income and the expenditure. जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना ही आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ये आपको ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल लॉजिक है ये चीज. सो एंड इट स्टेट्स हियर दैट इज कि इट हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, मींस इसका कर्व क्या होगा, अपवर्ड होगा. ये चीज हमें याद रखिएगा. ओके, एडी का क्या होगा, अपवर्ड कर्व होगा, बिकॉज देयर इज अ लेवल ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख जाएगा. Now, for example, the level of income rises, the expenditure, that is the AD also rises. Okay. Now let's understand with the help of diagram. Now first of all we have to make 4 columns. ये आपके पूरे अभी चैप्टर में जितना भी हम AD का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें यही आपका टेबल फॉलो करना है. फॉर एग्जाम्पल रैंडमली हमने इनकम ले ली, हमारी इनकम एक जगह एक टाइम पे होता था, हमारी इनकम कुछ भी नहीं थी, जीरो. फॉर एग्जाम्पल इन कोविड, ड्यूरिंग कोविड. ओके, देन डिफरेंस हमने 100 का ले लिया, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600. ओके, टिल हियर वी हैव मेड द कॉलम. नाउ कंजम्पशन क्या था, जब आपकी इनकम जीरो होती तब भी आप कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो करते हो ना. कैसे करते हैं कंजम्पशन, हमारे पास सेविंग भी हो सकती है, हम किसी से लोन ले सकते हैं, किसी से बोरो कर लेते हैं, तो हमारा ऐसा तो नहीं कि खर्चा रुक जाता है. कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, फूड होता है, क्लोथिंग होता है, शेल्टर होता है, हमें उसका बिल पे करना होता है. सो दैट मीन्स इवन इफ द यू कैन से द इनकम इज जीरो बट कंजम्पशन विल बी देयर, एंड दैट कंजम्पशन इज नोन एज द ऑटोनमस कंजम्पशन. ये भी हम आगे रीड करेंगे, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. ओके, तो अब हमने इसका डिफरेंस यहाँ पे क्या ले लिया कंजम्पशन में. फॉर एग्जाम्पल हमने मान के चले 80 का डिफरेंस, तो 40 इसमें ऐड कर दिया 80, तो 120, 120 प्लस 80 200, देन 280, देन 360 एंड सो ऑन. ओके, तो यहाँ पे 100 का डिफरेंस ले लिया, यहाँ पे हमने 80 का डिफरेंस ले लिया, मतलब डिफरेंस का मतलब हमने ऐड करते चल रहे. ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, अजम्पशन है हमारा कि इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनमस.
और इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका एक बस कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ऑटोनोमस का मीनिंग होता है सेम और कांस्टेंट, ओके। तो आप देखिए, और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक द टेबल, ओके। सो फर्स्ट आई हैव गिवन दैट इज इनकम, हमने जीरो से स्टार्ट करी बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस नो इनकम बट स्टिल वी हैव टू कंज्यूम। तो कंजम्पशन हमने इनकम में डिफरेंस लिया था, 100 प्लस करते चले जाएंगे, कंजम्पशन में 80 ऐड काउंट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ओके। सो यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज मीन सेम रखेंगे पूरे में, ठीक है। एडी इज व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो कॉम्बिनेशन आप दोनों को ऐड ऑन कर दोगे, 40 प्लस 20 वी विल गेट 60, देन 120 प्लस 20 140, 200 प्लस 20 220, 280 एंड 20 प्लस तो आपका आ गया 300 एंड सो ऑन, ओके। नाउ Now, how we are going to make a diagram here? First of all, we are going to just place here y, o, x, that is the origin, and x axis, okay? Then AD we will take on this side and income on this side, okay? That is on the x axis. Then what we will do first, we will just make it here कि आपका जो investment है यहाँ पे ये क्या है? Constant है, right? तो 20, for example, मैंने एक imaginary मतलब मैंने numbering नहीं की है यहाँ पे, मैं आपको simply बता रही हूँ ताकि आप आराम से उसको जो है डायग्राम को याद कर लो, ओके। तो ऑटोनोमस है तो स्ट्रेट लाइन सिंपल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अभी इसका डेफिनेशन भी आपको, एक्सप्लेनेशन भी आपको ये टेबल का नीचे ऐसे ही मिलेगा, राइट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दैट इज स्ट्रेट लाइन सिंपली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि कोई भी चेंज नहीं हो तो यहाँ पे आकर 20 हो जाएगा, राइट। नाउ हियर कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन देखिए आपका 40 से इंक्रीज कर रहा है, ओके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंजम्पशन मैंने बताया देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। So as the income is going to increase, the consumption also increases. So it is a upward sloping curve, right? Then the third point is what AD is a combination of both, that is consumption plus income. So obviously बात है ये क्या होगा? Parallel to consumption curve बन जाएगा, okay? जहाँ पे 40 वहाँ पे 60, जहाँ पे 120 consumption वहाँ पे 140, इसके just parallel आप बनाएंगे जब आप इसको अगर नंबरिंग करते हैं तो, राइट। ना मेन पॉइंट क्या है, जो ये आपका चीज आ रही है जहां पे इनकम आपकी जीरो है, इनकम आपकी क्या है? जीरो है यहाँ पे, ओके। एंड दिस portion where the consumption is still there, okay, 40 क्या है आपका कंजम्पशन है, जहां पे इनकम आपकी जीरो है बट यहाँ पे कंजम्पशन 40 है, तो इट इज नोन एज द सी बार। यहाँ पे देखिए सी बार आपको दिख रहा है ना, सी बार इज व्हाट? इट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया, दैट मीन्स इवन द इनकम इज जीरो बट यू हैव टू कंज्यूम, तो वो हम कहते हैं उसको यहाँ पे, इसीलिए ये इतना गैप है, राइट। देन there is a positive relationship between income and consumption, okay। या हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एंड इनकम तीनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तीनों जब बढ़ेंगे तो तीनों चीजें बढ़ेंगी और कम होंगी तो वाइस वर्सा, ओके। देन ऑटोनोमस कंजम्पशन आपके पास आता कहाँ से है? दैट इज सेल ऑफ असेट, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या है? आप कंज्यूम करते हैं लेकिन आपके पास इनकम जीरो है, तो कहाँ से आप खर्च करते हो? या तो अपनी पुरानी बोरोइंग्स आप वो अपना सेल ऑफ असेट को ही कर देते हैं, या बोरोइंग कर लेते हैं, या प्रीवियस सेविंग करते हैं। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। नाउ वी विल सी हियर इन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एडी। अब इसी को जो है ये इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया टेबल को, वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू डू दैट। एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, मैंने पहले ही बताया था। देन पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम लेवल इज जीरो, जीरो, ओके। तो पॉजिटिव कंजम्पशन है, कंजम्पशन हैज टू बी देयर, ओके, इवन द इनकम लेवल इज जीरो, ओके। So some level of consumption, even the income is zero. During the COVID time, we all have experienced that. Okay, it happens because people need certain basic goods and services to sustain themselves, even if the income is zero. Okay, then ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या? तो डिनोटेड बाय सी बार, ये जो लाइन ऊपर है इसको हम कहते हैं सी बार, इसको डिनोट करते हैं इस चीज से, रिफर्स टू अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हिच इज नीडेड फॉर सर्वाइवल, ओके। तो आप इसको कह सकते हैं कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो ये जो आपका गैप है यहाँ पे, ठीक है ना, ये तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया स्ट्रेट लाइन। तो इसके कंजम्पशन के और इसके बीच में जो गैप है, ये कंजम्पशन और ओ के जो बीच में यहाँ पे जो गैप आ रहा है, दैट इज द सी बार और ऑटोनोमस कंजम्पशन, ओके। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व आपने देखी है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ओके। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व एंड एडी इज ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये आगे हम अभी इसमें देख लेंगे और भी, ओके। So it increases with the increase in income, upward sloping curve, okay, and however proportionate increase in consumption is less than that of income. Now slope of autonomous investment ये parallel to x axis है, that is constant. Then starting point of AD और curve और CI curve, that is C और plus I का curve जो होता है T से as at zero level of national income, AD is equals to autonomous consumption, okay.
or plus autonomous investment. Then slope of AD curve, AD has a positive slope which indicates that as income increases, okay, aggregate expenditure also increases. With this, we come to the end here of this part, and in the next video we are going to start the aggregate supply. Hope you like it, okay, but you just know how to draw this diagram. It's a very important diagram. इसमें question जरूर आता है. You should know that this is autonomous investment. ये parallel to x axis होगा, इसको रट लीजिएगा, okay. और ये बस आपका कंजम्पशन कर्व क्या होगा यहाँ पे, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड एडी. ओके, इनकम एंड एडी में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए कंजम्पशन कर्व एंड एडी कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. ओके, और यहाँ पे कंजम्पशन सी बार क्यों लिखा गया, बिकॉज इफ द इनकम इज ऑल्सो जीरो देन स्टिल वी कंज्यूम. तो यही आपका चार्ट, सब जगह आपको जो है टेबल फॉलो करना है और इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आएंगे. होप यू लाइक इट. Please do like, share, and subscribe, and thank you for watching.